रोलिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंटली हमें रोलिंग के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए. आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये, बट है काफ़ी आई लंबा, तो होप यार देखने वाला है. लास्ट ही हो गए और ना आ जाए. हाँ नहीं है, बट जो प्रैक्टिस वी हैव टू डू द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, आई थिंक विल टेक अनदर 2 to 4 hours. तो इसका ना थर्मोडायनेमिक्स सीधा शुरू करेंगे. केमिस्ट्री, हाँ 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 जी. बहुत इजी है. डोंट टेक एनी टेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देयर इज नथिंग टू वरी इन थर्मोडायनेमिक्स. है ही कुछ नहीं उसके अंदर. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ही, होना चाहिए ना कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड. देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दैट. ऑलराइट, और पहले वही शुरू करना चाहिए. पहले डिफिकल्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, तो बाकी सब जल्दी हो जाता है. मुझे पता है ग्रेविटेशन इज फास्ट, बाइनोमियल इज फास्ट. दिस इज वन हेडेक चैप्टर जो छूट जाता है, फिर करा ही नहीं जाता. आधा को मतलब 60% ऑफ द पेपर विल बी रोलिंग मोशन, सॉरी रोटेशन. मुश्किल हो जाएगी बड़ी. सो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज रोलिंग मोशन? नहीं It's a नहीं उड़ गया वो. combination of rotational motion plus सर्कुलर. translational. अच्छा. Rigid body है. जैसे डिस्क है ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास जा रहा है वेलोसिटी से. ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट स्टडी करते हैं इसके ऊपर. सो दिस इज अ बॉडी मूविंग विच इज रोटेटिंग as well as moving forward, is in state of rolling motion. इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो एम्फसाइज करा जाता है क्वेश्चन में, जैसे रोलिंग कैन हैपन, फर्स्ट केस विच वी स्टडी इज विदाउट स्लिपिंग. स्लिप नहीं हो रहा ये, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. ओके. तो ये इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे होता है. हमने इसकी एक सिमुलेशन भी देखी थी. ये वीसीएम और ये 2 VCM पे होता है. इसके अंदर v इज इक्वल टू आर ओमेगा ट्रू होता है. if you have to calculate velocity, then v is equal to r omega. Then the situation is slipping का केस भी आएगा अभी. जैसे मैंने बोला था मोटरसाइकिल एक गेट स्ट्रक इन, for example in desert, the wheel moves very fast, rotates very fast, but doesn't show too much movement. Whereas when you put the brakes, the rotation is very low but the sliding is very high. Linear motion is very high. तो कौन डोमिनेट करता है वो उस पर डिपेंड करेगा. बट व्हेन यू टॉक अबाउट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वी आर रेफरिंग टू प्योर रोलिंग. दिस इज फर्स्ट थिंग वी हैव टू गेट acquainted with. What are the key characteristics of pure rolling? The bottommost point is at rest because every particle has VCM here. So this also has a VCM, but the R omega is reverse of it. So if VCM and this is R omega, and if this particle is such that VCM due to translational motion becomes equal to the velocity due to rotational motion, R omega, then this point is at rest. Such a situation is called as pure rolling or rolling without slipping. Very importantly. So consider this point. It has a velocity, translatory velocity because of forward motion, which is VCM. It also has a R omega. So if that also becomes equal to VCM, the total velocity of the topmost point becomes VCM plus VCM is equal to 2 VCM. So if you see a figure where you see 2 VCM, VCM and rest, 100% that motion of rolling is a pure rolling motion. That's a key characteristic of the top point. Okay, so all right. Now, what do we study? Inclined plane. This is an inclined plane, and this is some cylinder which is coming down. And the word used is it is coming down, and it is coming down without slipping. लिखा होगा क्वेश्चन में without slipping. You have to find the expression for linear acceleration, a linear acceleration of this when it is coming down due to the
rolling. It is rolling. So you know this is at rest, this is twice, and this is VCM. You have to find a linear expression. So you can draw the free body diagram first. Weight of the cylinder. Okay. This is mg cos theta as usual. This is the normal reaction. This is mg sine theta. And so these are the components, general components, normal reaction, mg cos theta. This is mg sine theta. Okay. And the standard है बिल्कुल is there is nothing in this. Let's say there is a friction also. So the friction is, if it is going down, the force of friction is acting upwards. नॉर्मल बिल्कुल बनाया, अभी कोई रोटेशन की बात नहीं करी, स्टैंडर्ड न्यूटन का फ्री बॉडी डायग्राम. और अब हम क्या करना शुरू करेंगे, वी विल से दैट इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट as it goes down. Angularly also it will accelerate, so it will have alpha because mg sine theta is getting applied on it. And if it is moving around a certain axis, there are torques etc getting applied on it. So let's calculate. So if you have to find out what is the net downward force, so net downward force is mg sine theta minus f. So this motion which we are seeing of a cylinder going down is a mix of linear motion. So we are applying these mg sine theta minus friction, subtract earlier, that's a net downward force. And if you have to apply the torque now, okay, since it's a cylinder, it is having a fixed shape and geometry, and a force is getting applied on it, and it is rotating. So if you take a point on this point, okay, so this is the contact point, right? So if you calculate, this is the force and this is the force arm. Okay. So that is why it will rotate, because turning has to come from some source. So this is providing the necessary torque in this direction. And this, let me just enlarge the figure a bit and mark it also, that this particular part is the force arm, the perpendicular distance of the line of action of force. Line of action of force is this, its perpendicular distance from the एक्सिस 90 डिग्री है, तो ये भी पता है हमें रेडियस के बराबर है. सो द टॉर्क ऑन द बॉडी इज mg sin theta, and also see friction is acting here, so it has no distance. Normal reaction is also passing through it, this contact point. मैंने तो बहुत मोटा बना दिया, but it's actually just a point touching. Okay, so dot, I made it thick just to emphasize. So normal reaction is through that. If you notice, mg cos theta has no perpendicular distance. So no force has a distance from it. So the other forces are not able to apply any. Sorry, if you notice, friction and friction का distance लेकिन center से है ना. mg sin theta सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, mg sin theta. So mg sin theta का टॉर्क आ गया mg sin theta into r. बट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है? Let's consider. I think I've not defined it correctly. If it comes down, this cylinder, if it comes down, so let me redraw the cylinder. Okay, so ये सेंटर है, तो इसका जो रोटेशन का एक्सिस है वो तो ये है ना, ये वाला. ग्राउंड पे थोड़ी ना उसका रोटेशन है, यहाँ से रोटेशन हो रही है. सो mg sin थीटा तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर है. फ्रिक्शन जो है ये वाला, उसका डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस. सो फ्रिक्शन इज एक्चुअली मेकिंग इट मूव. Any doubts in your mind, please ask. This No, is no. the cylinder going down. The axis is here. The wedge is here. Okay, the mg sin theta is on the axis itself. There is no perpendicular distance mg sin theta, but friction has a distance r. So the torque is not coming from mg sin theta, but coming from friction Okay. into r. So this is your r.
क्योंकि mg sin थीटा तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही लग रही है, जो जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहे हो, अगर फोर्स उसी के ऊपर है तो घुमा ही नहीं सकती वो फोर्स। अगर ये नीचे होता थोड़ा यहाँ पे mg sin थीटा तो इसको रोटेट कर पाता, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता। दैट इज नॉट द केस, सो देयर इज नो टॉर्क कमिंग इन। व्हाट एल्स? Okay, so we also know that the friction is the one which is providing the torque, and we also know a expression from Newton second law, which was the net force acting on the body downward. So this is from rotation aspect, who's providing the turning, and there's another one which is net force which is acting down is mg sine theta minus the force of friction. So equation number 1 and equation number 2, since there is a torque on this, so I can rewrite equation number 1 as F into R is equal to I into alpha. If I'm applying an external torque, I am bound to produce an angular acceleration. Okay, so moment of inertia of the cylinder. So I've just rewritten this. Equation number 1 is rewritten as 3. 1 is equal to 3, same equations. But we also know that torque is force is equal to mass into acceleration. So torque is moment of inertia multiplied by angular acceleration. Okay? This is another one. So we have two equations, in fact three. एक तो एफ आर हमने कन्वर्ट कर लिया और एक हमारा न्यूटन वाला है. हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन. एक्चुअली लीनियर एक्सेलरेशन of this body when it comes down. That is our focus. So let's say this force is ma, net downward force, is equal to mg sine theta minus, let me substitute the friction here from here, क्योंकि मुझे निकालना तो a है. So I have to get rid of friction से कोई मतलब नहीं है मेरा. So I'm going to use this equation and write F is equal to I alpha by R. So mg sine theta minus I alpha by R. I तो मैंने F की वैल्यू डाल दी है यहाँ पे इधर. So this is my linear, and if I put the value of the moment of inertia of the cylinder also, I think it is mr square by 2. Yes, ये mr square थी सिलेंडर की अबाउट इट्स एक्सिस. ये वाले सिलेंडर अगर नीचे जा रहा है इंक्लाइन पे जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, एक्सिस ही है. इट रोल्स डाउन, देन अबाउट इट्स axis passing through its center of mass. Okay, I think it is mr square. ma is equal to mg sin theta देखना पड़ेगा minus mr square alpha by r. Okay, and in the case of pure rolling, remember there are two conditions which are met. One obviously is the condition where we studied the three positions 1, 2 and 3. So this is your 2v, this is v, and this is the contact point. So and this all came because v was equal to omega r, v center of mass. यहाँ subtract हो गई, यहाँ add हो गई, यहाँ r omega है ही नहीं, radius ही नहीं है. The second condition of pure rolling is when a is equal to r alpha. So linear acceleration can be written as this. So मुझे alpha भी नहीं चाहिए. I need answer in a. So ma is equal to mg sin theta minus mr, rr कट गया. So this is mr. Alpha I'm going to write it as a by r. This is again a by r. Okay. ma is equal to mg sin theta minus क्या क्या बच गया यार? एक r चला गया, एक अल्फा की वजह से a बार आ गया, तो नेट क्या बचा यहाँ पे? m किससे कटा है? अच्छा m तो रहेगा ना, अभी तो मैंने सब जगह से m नहीं निकाला. So m will stay and this will become m by m. r भी कट गया, अल्फा इज इक्वल टू a बचा ना फिर. यस, सही लिखा है गलत है? सही लग रहा है. हाँ जी. सिलेंडर का ही डाला है ना मैंने, जो भी बॉडी है उसका डाल दो आप.
moment of inertia, or F into R is equal to I into alpha. F is equal to I alpha by R. सही है. F की वैल्यू डाल दी, ये I अल्फा बाय आर, अल्फा को डाल दिया A बाय आर. तो दूसरा आर कहाँ गया जब ये डाला था? अच्छा, ये एक आर ही है, फिर अल्फा को A बाय आर डाला, तो एक आर मिसिंग है ना, एक आर और आ गया. तो एक काम करते हैं, फॉर द टाइमिंग लेट मी जस्ट री राइट दिस. ओके, इसको दोबारा लिख देते हैं. आई थिंक दिस इज नॉट कमिंग आउट क्लियरली. आई अल्फा बाय आर तक तो आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर कि लेट्स पुट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा. ओके, रोटेशन से. तो ये मेरा जो आर है एल, ये जो एम जी माइनस थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज आई अल्फा बाय आर. यहाँ तक लेट्स कीप इट हेयर. Let me just redo it slightly cleanly. So if it is going down with this linear acceleration due to the net resultant of mg sine theta and minus the force of friction, let's keep I as I. Let's not touch it. And so we'll leave this open-ended कि अगर स्फीयर है तो स्फीयर का डाल लेंगे, डिस्क है तो डिस्क का डाल लेंगे, सिलेंडर है तो सिलेंडर का डाल लेंगे. ये तो जनरल बन रहा है कि इफ अ rigid body comes down in a pure rolling, could be a sphere, could be a ring, could be a rod like this, okay, and it is coming down. ये तो सिलेंडर ही है. खैर, रॉड तो ऐसी होती नहीं है, तो वो तो सिर्फ रॉड इज जस्ट लाइक दिस. तो कोई भी है, मतलब स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर, जो भी हमने जितनी भी पढ़ी थी, रिम, वो है मान लो. तो आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग इन आई कैन. तो अल्फा को आई एम राइटिंग इट एज अल्फा, आई एम राइटिंग एज ए बाय आर स्क्वायर. ठीक है. सो अल्फा इज ए बाय आर, आर एक नीचे अवेलेबल है. सो एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. ए एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. So A is equal to mg sine theta upon m plus I by r square. So any body, a rigid body coming down the incline angle is theta, and it is clearly written in the question that it is a case of pure rolling and the body is coming down because of the pure rolling motion. You can memorize this formula of linear acceleration and say, okay, the linear acceleration can be expressed as the mass of the body, gravity is fixed, theta of the incline, mass of the body, and the moment of inertia of the body divided by r square. If you notice this, I, if I want to put I here, so I can put the I of any body, cylinder, sphere, 2 by 5 mr square. कुछ भी डाल लो आप. So let's put for a cylinder about its axis, बिल्कुल डिस्क वाला ही आता है. तो ये सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाय 2. So mg sine theta upon there is something wrong with this expression. एक बार चेक करते हैं. m plus I is mr square by 2 upon r square. तो r square कट गया. So this implies this is mg sine theta and 3 by 2 m. So ये mp कट गया, 2 ऊपर चला गया. So this is 2/3 of g sine theta. So your acceleration of a cylinder, linear acceleration, although it is rotating, but linear, फिसलता हुआ linearly किससे आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, is 2/3 the g sine theta. जनरली अगर ये रोटेट नहीं कर रहा होता, रोलिंग वाला मोशन ना होकर सिर्फ नीचे फिसल के आ जाता, तो हम इसकी फ्रिक्शन से अपना नेट निकाल लेते कि एम ए इज इक्वल टू, ये लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेट का कंपोनेंट माइनस फ्रिक्शन को म्यू एन निकालते और हमारी एक्सेलरेशन लीनियर आ जाती. बट यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ और भी कर रहा है, विच इज फ्रिक्शन इनटू आर इज प्रोवाइडिंग. सो द फ्रिक्शन विच इज हेयर, राइट, इस जगह पे जो फ्रिक्शन है इस इंक्लाइन प्लेन पे, वो इस एक्सिस के अबाउट it is providing a torque, which is what it is making it rotate. So if it is coming downward, the friction is acting upward and making it, so this perpendicular distance from the axis and the friction. So this is friction and this is the perpendicular distance. So it is making it rotate also.
तो यहाँ पे कुछ अलग डायनेमिक्स हो जाते हैं कंपेयर टू प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, जहाँ पे यू कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो जी साइन थीटा होता है. So if you have to memorize the formula, I think the real formula to memorize for a rigid body, linear acceleration, pure rolling when it is coming down should be this. mg sin theta upon derivation भी आ सकती है आपके स्कूल में. Calculate for a sphere. So you will say, okay, sphere है, तो the body changes to a sphere. This is my body then, and this is my incline. Again, it is coming down. The friction is acting in this direction. This is my perpendicular distance from the axis. It is rolling down. So ये roll होता हुआ नीचे आएगा. यहाँ पे जो आई लिखा है वो 2/5 mr². तो दैट चार्ट एनीवे हैज टू बी रिमेंबर्ड. रिम है अगर, ओके, इट्स अ रिम व्हिच मींस अ रिम बोले तो? हाँ, अच्छा, रिम क्या होती? हुप हुप हुपला नहीं होता जो, अच्छा, इसमें एक वो बंदा कह रहे अंदर थे। खड़ा होकर हिलता है ऐसे गोल गोल. अच्छा, यू कैन कॉल इट रिम, हुप, whatever you want to call it. Ring. Some people call it ring. Some call it hoop. Some call it whatever. ठीक है? So this is a general expression for you. Okay, now let's say so question can be so two bodies come down. Okay. So this ठीक है। is your inclined plane. This is body number 1. It's a cylinder. ये नीचे आ रहा है और एक्सपेरिमेंट करा और यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन निकाली. सॉलिड सिलेंडर था एंड यू कैलकुलेटेड a is equal to 2/3 g sin theta. Then you said, let's convert this cylinder into of radius r, but let's convert it into the a hollow cylinder. So mass distribution will be at the periphery. So the new value of the so experiment is redone. The same experiment is being done. This is recasted और मतलब एक और ले लिया और यहाँ पे उसको रखा. But this time everything is same, mass is same, radius is same, but this is hollow. Solid में तो हमने देख ही लिया mr²/2 डाल के. तो एक्सेलरेशन जो है अब हॉलो की निकालते हैं, क्या होती है हॉलो की चेक करते हैं कंपेयर टू अ सॉलिड सिलेंडर. सो m प्लस mr² होती है डिवाइडेड बाय r². ये कट गया r², सो ये आ गया m भी कट गया और 2m आ गया नीचे. सो दिस विल बिकम g sin थीटा बाय कितना आ जाएगा m प्लस mr². कैन वी डायरेक्टली पुट इट, कितना आ जाएगा g sin थीटा. ए हॉलो था ना, अभी मैंने m डाला है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा न्यूटन्स लॉ, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंस है. तो पुट द वैल्यू ऑफ a g sin थीटा अपॉन 2 आ गया ना, m जी, plus m. So your a hollow you can see has decreased. ठीक है। ठीक है, या इट डिक्रीजेस. पहले 2/3 थी ना, 0.66 g sin theta. So they can ask you 5 bodies are thrown, one sphere, which one of them, which one, and they are at same incline पे इकट्ठे छोड़ दिए, बड़ी incline थी. So parallelly they were left. It's a huge incline. It's a big incline and पहले छोटा सा यहाँ पे स्पेस सिलेंडर को दे रखा है, फिर ये स्फीयर है, ये हुपला है, ये सॉलिड डिस्क है, एक हॉलो सिलेंडर है, एक हॉलो स्फीयर है, बड़े सारे. कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा जी? So you will have to find the linear acceleration of each one of them and say, okay, the one with the highest linear acceleration. And remember, a is, if you see, it is coming in denominator, right? If it is inversely proportional to I, assuming सारे mass same है, radius same है, फर्क तो सिर्फ I का आएगा ना. फिर उनमें जिसका I सबसे ज्यादा होगा वो सबसे स्लो होगा. जैसे कि हॉलो के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया as compared to this solid was mr²/2, so moment of inertia has gone up in the case of hollow. If it goes up, what happens? The acceleration has gone down. ओके। क्योंकि टॉक अब ज्यादा, वो जो टॉक लग रहा होगा फ्रिक्शन का, उसको अब ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है, तो अल्फा कम हो गया ना आपका. हाँ जी। इफ योर अल्फा Okay. गोज डाउन देन a इज इक्वल टू r अल्फा. हाँ, तो आपका a गिरना ही है. ठीक है। तो रीजनिंग असर्शन में बना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन. A very important derivation for school examination specifically, okay, and also used vehemently in
जेई आनी चाहिए, मतलब बेसिक्स में आती है बट होती है ये. Okay, so let's say another question, okay, pertaining to the same type of rolling motion. Now the question is, what? See, somebody said, okay, you've been using the word pure rolling, okay, and then you say it is something like rolling without sliding, okay. Since there is no sliding, that type of rolling becomes pure. Purity is because the sliding is missing. फिसल के नहीं आता नीचे. The body is not sliding. फिसल के नहीं आती है. जब बर्फ में आप फिसल जाते हो, प्रॉपर रोल करती हुई आती है और बॉटम मोस्ट पॉइंट बिल्कुल रेस्ट पे होता है. ये पॉइंट 2v पे होता है और ये पॉइंट v पे होता है. इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग. तो देन देर आर मोशंस which are impure, which means they are with sliding and with skidding. यही मतलब हुआ ना इसका. हाँ तो जी. एक बेसिक बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा मैं, कि एक कंडीशन है. You have noticed that the friction is playing a very important role. One, it is providing rotation, and of course it is anyway on a inclined plane it is there, or any surface it is there. Friction is very useful. It does play. रोलिंग के केस में खासकर ही कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि ये इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट. इफ देर इज नो फ्रिक्शन देयर, हु विल प्रोवाइड द टर्निंग? कोई सोर्स ही नहीं है. टर्न कैसे होगा फिर ये? So if you see something tumbling down, not exactly tumbling, but rolling down an inclined plane, you know there is a friction there. So evidence, if there is no friction, what exactly is happening there? But let's talk about condition. The question is, what should be the value of coefficient of static friction? Minimum value of mu s. Now here is where it becomes complicated, because I'm doing in a shortcut method. There is a huge theory behind this. Mu s कितना होना चाहिए कम से कम कि the body does not slip. Body does not slip. ठीक है. तो मतलब सुनने में इट्स अ वेरी क्रिप्टिक लैंग्वेज. इट्स अ वेरी, क्या बोलूं मैं, छुपी हुई लैंग्वेज है. डज नॉट स्लिप मतलब बॉडी रोल तो हो रही है, रोटेट तो हो रही है, लेकिन साथ में स्लिड भी मार रही है, स्किडिंग भी दिखा रही है, फिसल भी रही है. मैंने फ्रिक्शन जो है वो, फ्रिक्शन तो वहां एक्ट करता है ना जहां पे रिलेटिव मोशन होता है. बट रिमेंबर दिस पॉइंट इज एट रेस्ट. सो इफ इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेज, देन इट हैज नो रिलेटिव मोशन, बिकॉज फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन टेंड्स टू डिस्ट्रॉय रिलेटिव मोशन. वैसे इफ टू बॉडीज वांट टू स्लाइड ओवर ईच अदर, अगर मैं इसको यहाँ धक्का मारूं तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा ना. हाँ जी. तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? रोक रहा है ना इसको कि मत चल तू. Yes. उल्टा. तो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज डिस्ट्रॉइंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. दिस वांट्स टू मूव विद रिस्पेक्ट टू दिस. फ्रिक्शन इज कमिंग एंड स्टॉपिंग कि नहीं चलने दूंगा. तो इट फ्रिक्शन ऑलवेज प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन. एंड सिंस दिस पॉइंट इज एट रेस्ट, friction is not there, so no sliding happens. Imagine this point is not at rest. Relative motion will happen, right? हाँ जी. तो हमने तो प्योर रोलिंग में बोल दिया था ना ये रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू द वेज, क्योंकि इसकी अपनी वेलोसिटी जो है नीचे जाने की वजह से वो ये है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और नीचे जाने की वजह से VCM है. ये दोनों कैंसिल हो गए. ये स्टेशनरी है. स्टेशनरी है तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा. फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लाइडिंग नहीं होगी. बट अगर फ्रिक्शन ऐसा है कि ये पॉइंट रेस्ट पे ना हो, और तो क्या हो जाएगा? दिस विल एग्जैक्टली स्लाइड लाइक दिस. रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस सिलेंडर और जो भी है ये ब्लॉक ऑफ मास रिजिड बॉडी, it will exhibit relative motion like features, which means sliding will come into picture. प्योर रोलिंग नहीं रहेगी. वो रोल तो हो रहा होगा बट रोल विद स्लाइडिंग दिख रहा होगा, लेकिन जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां रिलेटिव मोशन भी आ जाएगा. जो हमने पिछले केस के अंदर रोलिंग में रिलेटिव मोशन खत्म कर दिया. जब मैं बोलता हूं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट वेलोसिटी 0, इट्स अ वेरी इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग ना, कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस पॉइंट एंड द वेज. If they have a relative motion, then this will slide and friction is acting, and it will slide down. मतलब खिसकता हो जाएगा. Relative motion will arise. जब ये ऐसे नीचे जाता है प्योर रोलिंग में, there is no relative motion between the wedge and the
मतलब द रिजिड बॉडी, इट्स प्योर रोलिंग. Okay. ठीक है, सो लेट्स, होपफुली थोड़ा बहुत समझ में आया, अगर आ गया ठीक है. फ्रिक्शन देखो, हमने अभी पीछे न्यूटन्स लॉ जब लगाया था, सो वी सेड द नेट फोर्स इज गिवन बाय mg sin theta minus friction, right? So friction will be given by mg sin theta minus f. Okay, and friction we already know, right? In the case of we just calculated for a sorry, a solid cylinder, that the acceleration is going to be 2/3 of g sin theta. ये हमने सॉलिड सिलेंडर के लिए करा था अभी. तो मैं क्या करता हूँ, इसी में फ्रिक्शन की जो कैलकुलेशन है उसमें फ्रिक्शन को लिखता हूँ मैं mg sin थीटा माइनस नेट एक्सटर्नल फोर्स ए मैंने निकाला था अभी. तो आई एम डूइंग दिस कैलकुलेशन फॉर सॉलिड सिलेंडर, जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 डाला था मैंने, तो मेरा आंसर आया था 2/3 ऑफ g sin थीटा. सो f बिकम्स 1/3 ऑफ g sin theta. This is the force of friction. This is, and now we know that if we talk about, and remember, since the body is at rest, in a pure rolling, the body is at rest with respect to the inclined plane. The motion is static motion which is playing a role. Remember that. बट जब आप अगर बात करते हैं कि मैं प्योर रोलिंग में हूं, तो लोग बोलेंगे तो नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन लिख रहा है एफ इनटू दिस एफ इनटू, तो फिर क्या है, तो काइनेटिक है. रियलिटी ये काइनेटिक नहीं है, ये स्टैटिक है, क्योंकि वो पॉइंट रेस्ट पे है. काइनेटिक तो तब आता है जब दोनों में रिलेटिव मोशन शुरू होता है. ये तो है, ये रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं शुरू, क्योंकि प्योर रोलिंग है. प्योर रोलिंग के अंदर म्यू स्टैटिक काम कर रहा होता है, ना कि म्यू के. रेस्ट पे है, मैंने तो डिक्लेयर कर रखा है कि मैं तो रेस्ट पे हूं विद रिस्पेक्ट टू, तो काइनेटिक कैसे हो सकता है ये. अगर मैं स्लाइड करने लग जाऊं तो मैं म्यू काइनेटिक यूज करूंगा. अभी तो मैं कंडीशन निकाल रहा हूं कि म्यू की क्या वैल्यू हो विच विल प्रिवेंट द स्लाइडिंग. ठीक है. थोड़ा सा इमेजिनेशन में टफ है ना, थोड़ा, मतलब क्या, हाँ. मतलब वो क्या रहा है, नॉट इजी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट एट रेस्ट, इट हैज अ meaning associated with it. This is the complicated part, and there is a lot that can be explained. But so we know friction anyway is mu s n. Okay, so the mu s is 1/3 of mg sin theta. Sorry, I forgot to write m here. Divided by the normal reaction. Now you know normal reaction. उस diagram if you go back, mg cos theta ही होता है ना हमेशा. ये वाला, ये n और ये वाला जो part होता है, ये जो जी. mg का हिस्सा होता है, ये mg Yes. cos mg sin थीटा है. ये आपका वेट होता है, वेट. और ये वाला कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, ये वाला. तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा डाल रहा हूं मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में. तो म्यू एस इज इक्वल टू n mg cos थीटा. ओके, सो दिस इज 1/3 ऑफ tan थीटा म्यू एस. Okay. So if your static friction obeys this rule, you will see pure rolling. If your static friction goes below this value, what you will notice is sliding. You want to prevent sliding, please keep your mu s value 1/3 of tan theta. This is a necessary condition to prevent sliding. Sliding. Okay. अभी भी हमने स्लाइडिंग का कोई क्वेश्चन नहीं करा, अभी भी रोक के बैठे हैं स्लाइडिंग को. हम हाँ. प्योर रोलिंग ही पढ़ रहे हैं, अभी भी रोलिंग ही हो रही है. लेकिन उसमें एक पेच है कि प्योर रोलिंग से अगर में रहना है, तो वो कौन कौन से मतलब सिचुएशन होती है. तो आपको पता है, सिंपल v इज इक्वल टू आर ओमेगा पता था, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा पता था, सिंपली स्पीकिंग. Yes, sir. प्योर रोलिंग है जी, चलो ठीक है. अब इंक्लाइन प्लेन आ गई है, फ्रिक्शन भी इंट्रोड्यूस हो गया, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट ना.
हाँ। भाई तो अब क्या करें, यही दो कंडीशन रहेंगी क्या सफिशिएंट? नो, द एक्सेलरेशन फॉर्मूला वी जस्ट डिराइव्ड, लीनियर एक्सेलरेशन चेंज हो जाती है, काफी लंबी चौड़ी, डिफरेंट फॉर्मूला ऑल टुगेदर। और कंडीशन भी इमर्ज होती है कि भाई इस इंक्लाइन प्लेन पे अगर आपको प्योर रोलिंग रखनी है तो देर इज अ कंडीशन, इफ यू वायलेट दिस कंडीशन you won't be able to achieve pure rolling on an inclined plane, and that condition is this: mu s is equal to 1/3 of tan theta. Obviously this is for a solid cylinder which you have done the calculation. कोई भी फिगर होती तो फिर मैं ये 2/3 बदल दूंगा ना, आई विल चेंज दिस। अभी तो मैंने सॉलिड सिलेंडर का डाला है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आ गई है, देखो म्यू इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, सो tan theta शुड बी 3 times mu s, basically. लेस देन इक्वल टू, 3 times mu s. yes, this is the condition for cylinder and inclined plane. Any doubts in your mind that come in? It's not an easy topic because ये वाला point अगर समझ में आ जाए ना, ये वाला, that this point is at rest and there is no relative motion, I think you are good to go. You have a sense कि अच्छा relative motion नहीं है तो static friction ही तो है फिर। लोगों को ये लगता है चल तो रहा है सिलेंडर, नीचे जा तो रहा है, नीचे जा तो रहा है, तो हाँ। काइनेटिक क्यों नहीं लगाया आपने? भाई काइनेटिक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा रेस्ट पे है, प्योर रोलिंग है मेरी। अच्छा, तो इसी वजह से यस, kinetic friction people will go by what they see na, they will not go in हाँ। that contact point. I will go into contact point. There is no relative motion, it is at rest actually. रेस्ट पे है तो मैं बोलूंगा my logic says फिर static friction होना चाहिए। तो प्योर रोलिंग में रिमेंबर, अगर कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे नहीं है तो फिर हम काइनेटिक यूज कर सकते यस, फिर तो हो गया ना, फिर तो विद स्लाइडिंग शुरू हो गई आपकी, इम्प्योर में आप घुस गए। हैं। हाँ, ठीक है। इम्प्योर में स्लाइडिंग स्किडिंग उसके न्यूमेरिकल भी होते हैं अलग से, यू कैन डू देम, देर आर, बट वो क्या है कि वो जो जब शुरू होगा ना वो, तो खत्म नहीं होएगा। हाँ जी, वो पक्का है। देन यू आर एक्चुअली गोइंग टू टेक टाइम, जो आपके स्कूल वाले हैं जो कभी भी, नहीं देंगे। इट हैज इट्स ओन इंट्रिकेसी एंड डिटेल, उसके बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए, कोई कमी नहीं है। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू योर चैप्टर तो फ्रॉम थैंक स्कूल गॉड। परस्पेक्टिव ओनली, फ्रॉम स्कूल परस्पेक्टिव ओनली, डजंट ब्रिंग एन एंड बिकॉज एंडलेस चैप्टर है, बहुत एंडलेस क्वेश्चन है। करने होते हैं, एंडलेस है, बड़े बड़े क्वेश्चन लाइक यू तो फिर शेयर्ड मतलब विद मी, जब वो तो जेई सर मैंने एडवांस ऐसे के। ही, वो तो मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया। नहीं मैं बता रहा हूँ, वही लेवल फाइनली अचीव करना होता है और उसी लेवल की तरफ जाना होता है, बट वो बड़ा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, उसके लिए यू नीड 2 people to do it, you know, it takes two to dance in that. I can't dance alone and then you come back and say सर जो आपने पढ़ा दिया वो आता है मुझे, अपने आप मैंने कुछ भी नहीं करा, then you're not preparing for JEE advanced, वो फिर मजाक है, फिर तो जोक मारने का कोई फायदा है नहीं इसके अंदर, नो पॉइंट, इट्स अ वेस्ट, cumbersome है, मतलब बहुत, it'll tire you out, you will see that, but it's rewarding also, very rewarding. Okay, let's do some numerical practice on the topic which we have just learnt. And इसमें भी वही क्वेश्चन आएंगे, बेसिकली यू विल हैव मिक्सिंग ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल दैट। सो इंक्लाइन प्लेन पे ज़्यादा फोकस है अभी हमारा, जहाँ पे हम स्लिप विदाउट स्लिपिंग का कर रहे हैं, विद स्लिपिंग नहीं करा हमने, और अभी हम पहले सीखते हैं कि विदाउट स्लिपिंग के न्यूमेरिकल कैसे हम कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इट। हमारे स्कूल में आएगा डिफाइन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, नहीं, एक वो तो आई नहीं रही, वो तो आई नहीं रही। डिफाइन 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 नहीं आ रही सर। आई नहीं रही है, अच्छा, ना ना, परपेंडिकुलर एक्सिस के न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट ओके उसका वो नहीं आएगी डेरिवेशन। ओके परपेंडिकुलर से पैरेलल एक्सिस और क्या कहते हैं, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशंस आएंगी। गॉट इट, ओके, हो सकता है, फॉर ऑल यू नो। प्रूव द एक्सिस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं आएगा, यू मीन, ठीक है।
So one question you can expect, which we have just we will just discuss it for the sake of it. लेकिन हमने अभी derive कर ही ली है वो. Okay, so that will keep you. So let me just paste it. Okay, so let's discuss this question. पढ़ लो ध्यान से. So you can read it. This is k square, by the way. Okay, k square, and this is r square. वही फॉर्मूला जो भी हमने डिराइव करा, बट द डिफरेंस इज दैट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन एट द बॉटम. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू द लीनियर एक्सेलरेशन जो हमने डिराइव करी थी, अब आपको बोल रहा है कि बॉटम पे वेलोसिटी कितनी है. कोई भी फिगर हो जनरल, उसके लिए इसने ये रेडियस ऑफ गायरेशन यूज कर लिया. नीचे जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो एक ही डेरिवेशन थी. ये डेरिवेशन जब बात हो रही है तो दिस इज बेसिकली द डेरिवेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसलेशन. लीनियर एक्सेलरेशन निकाल दी तो लीनियर ट्रांसलेशन भी निकल ही आएगी. कैन यू ट्राई कर सकते हो? और द सेम फिगर विच इज ये दिल्ली 13 क्या लिखा होता है? दिल्ली 13 का मतलब क्या होता है? दिल्ली बोर्ड. ओ दिल्ली बोर्ड ना, दिल्ली का अपना बोर्ड है ना. क्या कहते हैं, मतलब स्टेट कि बोर्ड. एम्स दिल्ली, आईआईटी नो दिल्ली. नो 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 नो, दिस इज दिल्ली बोर्ड. दिल्ली बोर्ड इज टफ लाइक यूपी बोर्ड. अब नहीं वो फर्क रहा. अब बहुत बहुत सीबीएसई का स्टैंडर्ड बहुत हाई है एनसीईआरटी का. पहले यही होता था कि दिल्ली बोर्ड बहुत टफ होता था, सीबीएसई बहुत इजी होता था. अब आपका खत्म कर सीबीएसई दिया. था मेरा सीबीएसई था. विद पीसीएमबी? पीसीएमबी ऑल फोर, यस करेक्ट. मेरे क्लास एक बच्चे ने पीसीएमबी में शिफ्ट कर दिया. बहुत अच्छा करा भाई, फोकस बड़ा अच्छा है. हमारे को तो मजबूरी थी, वी हैड नो चॉइस. हाँ जी, ट्राई करो. ए तो निकल जाएगा जैसे अभी हमने निकाला था. हाँ जी. तो ए मालूम है, तो अगर आपको ए मालूम चल जाए और आपको ये भी मालूम चल जाए कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे? वी नो ना. टोटल डिस्टेंस, हाइट एच दी हुई है, रिमेंबर दैट. हाइट ये और दिख क्या रही कहते है हैं, एच. हाँ जी. तो ए निकाल बेस लिया क्या है? मान लो. हाँ, बेस क्या? बेस क्या होगा? ये हाइट है एच, हाँ. ये इंक्लाइन प्लेन है थीटा. तो ये कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज? एच बाय साइन थीटा. दिस इज एच बाय साइन थीटा ना. हाँ जी. यस. सही लिखा है मैंने ये एच एच. नहीं, नहीं नहीं सॉरी यार. एक बार सर, हमें बेस भी तो नहीं पता. इसका क्या करेंगे? अगर एक चीज मालूम चल गई, देन व्हाई डू यू वांट टू नो सो मेनी थिंग्स? और एच बाय साइन थीटा कैसे है? एक ये मिनट. दिस इज एक्स नो. सो एच बाय इसमें ना एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा नहीं होगा? सही तो लिखा था. वो सर, अच्छा ठीक है, एच बाय साइन थीटा. सही तो लिखा था. हाँ. हाँ ठीक है. और दिस इज वाई. सो वाई अपॉन एच अपॉन वाई एच इज अपॉन वाई इक्वल इज टू इक्वल टेन थीटा. टेन थीटा. हाँ. तो वाई कितना आ गया? इक्वल टू एच बाय टेन थीटा. टेन थीटा. सो जो अभी हमने एक्सेलरेशन का रूल निकाला, लीनियर एक्सेलरेशन ए है, वो हमें मालूम चल गई, यूनिफॉर्म आई है. हम्म. और डिस्टेंस हमारा ट्रेवल्ड होगा एच बाय साइन थीटा. सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यू इज जीरो. ओके. बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट. ए हमने उससे डेरिवेशन से निकाल लिया, आई वाली डेरिवेशन जो थी. एस हमें मालूम है, एच बाय डिस्टेंस तो ये है ना. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. यप, वी स्क्वायर आ जाएगा. द ओनली थिंग यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इज दिस के स्क्वायर कैसे लाना है. तो नीचे जब हमारा फॉर्मूला आ रहा है, इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस, प्रीवियस है इसी में था. इफ आई गो बैक टू दैट डेरिवेशन हेयर, जो मेरा आ रहा है यहाँ पे, ए लीनियर का फॉर्मूला क्या था? ये रहा, आई बाय आर स्क्वायर, राइट? ये वाला ये वाला दिख रहा है, आई. आई. तो आई को मैं आई. लिख सकता हूँ एम के स्क्वायर. ठीक है. सिंग कहते एक वो हैं ए. ए का क्या था? ये रहा,
mg sin theta yes, upon upon m plus I by r square. I by r square. Yes. Of radius r, inclined plane angle theta, mass m. तो ये मैंने इसको m के स्क्वायर डाल दिया ना, हम्म, तो मेरा ये k स्क्वायर भी आ जाएगा जो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे। ठीक है, तो ये mg क्या कहते हैं, mg sin थीटा जी, अपॉन m। व्हाट इज mg sin थीटा? अच्छा, यू आर पुटिंग द दैट फॉर्मूला डायरेक्ट, a डाल रहे हो? हाँ, यस, हाँ ठीक है, कैन, अच्छा ये यू पुटिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ओके ठीक है। ये मैं हाँ आ जाएगा ना, इफ यू पुट m m प्लस k प्लस स्क्वायर बाय r स्क्वायर, k m स्क्वायर k बाय स्क्वायर इंटू m भी है, तो m तो ऊपर नीचे से गया, कौन? mk स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर, m कॉमन आ गया, यस। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू बट वेर इज 2g h? sin। h नहीं लिखा। सॉरी, h इज द लीनियर डिस्टेंस। हाँ जी, लीनियर डिस्टेंस तो हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा भी कट गया। यस, आ गया ना, देखो इन द आंसर देयर 2g इज नो साइन थीटा ना। 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, यस, तो ये हो जाएगा 2g r स्क्वायर जी, अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, हम्म, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट राइट, जी, सॉरी मैंने h नहीं लिखा। नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया ना क्या करा है? यू हैव टू यस नो यस, दिस, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव प्रैक्टिस दिस concept, derivation, etc., clearly. ठीक, Okay, next one. So there you go on this. I'm just that's your figure. पहले रोटेट करा उसको हाथ से, फिर जमीन पे रख दिया. There was no push given to it to make it move straight. Okay, and it's a frictionless surface. Now you have to decide, and the radius is given of disk. So you have to calculate the velocities of the body points A, B, C on the disk. Will the disk roll in the direction indicated? तो आपने इसको ऐसे रोटेट करा पहले हाथ से जैसे करते हैं, और फिर रख दिया जमीन पे. ओके, सो कोई धक्का नहीं दिया गया, सो हाथ से कोई टॉर्क नहीं दिया. व्हाट विल हैपन टू द, क्या ये आगे चलना शुरू हो जाएगा? व्हाट इज गोइंग ऑन? सी रिमेंबर, फॉर इट टू रोल
वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देयर इज अ फ्रिक्शन, सम सोर्स इज रिक्वायर्ड ना। हाँ या तो यहाँ से धक्का मारो इस जगह पे टॉक यस के लिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन दे रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाथ से मारा नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, तो सोर्स क्या है टॉक का? नो फ्रिक्शन। सोर्स, राइट? हाँ There जी is no, it's a sourceless situation. There is no source available to you to make it roll. घूमेगा कैसे? टॉक ही नहीं है आपके पास, रोटेशन कहाँ से आएगी इसके पास? हाँ दिया ना हिंट, फ्रिक्शनलेस भी है, ये भी है, वो भी है। ओके, तो यस इसका मतलब क्या हुआ? अब बाकी क्वेश्चन जो ए पे वेलोसिटी, बी पे वेलोसिटी और सी पे वेलोसिटी, ओमेगा नॉट दे रखी है। ओमेगा नॉट तो सभी पॉइंट्स की सेम है क्योंकि सब एक ही बॉडी के ऊपर है। वी सबका अलग अलग होगा। तो इसका इसका वी कितना होगा? ये इसका इसका वी कितना होगा ड्यू टू द मोशन? r/2 इंटू ओमेगा नॉट, क्योंकि एक्सेस तो यही है। हम्म, इसका जीरो, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा? ये यूं रोटेट कर रही है ऐसे। प्योर रोलिंग तो है नहीं क्योंकि सोर्स ही नहीं है टॉक का। प्योर रोटेशन है ये। तो हर पॉइंट जितनी जितनी दूर है सेंटर से, उसका आर ओमेगा निकालते रहो। इसका आर ओमेगा आ जाएगा आर इंटू ओमेगा नॉट, इसका आ जाएगा आर इंटू ओमेगा नॉट। ठीक सेंटर का तो पता ही है, कुछ भी नहीं है, आर ही नहीं है। क्लियर है? यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम फिगर, same figure, but now question is give the direction of frictional force so that the body actually starts the rolling, because you need someone to give it turning available ही नहीं है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? वो स्टैटिक फ्रिक्शन की, उस डायरेक्शन में होगी जिस हाँ, डायरेक्शन में जाए सेंस करेक्ट, यस, because it is going like this, it is okay, let me see, okay, understood, गोइंग इन दिस डायरेक्शन ठीक है, आगे। ठीक है व्हाट इज द So फोर्स ऑफ just be फ्रिक्शन very careful before perfect rolling begins and after. So this is a case where there is a likelihood that कुछ टाइम के लिए बॉडी स्लाइड कर रही है जब जमीन पे रखा गया, और उसके बाद बॉडी की स्पीड कम होती गई और एक पॉइंट आ गया जहाँ पे, तो हो सकता है शुरू में बहुत तेज स्लाइडिंग कर रहा हो, और स्लाइडिंग की वजह से फ्रिक्शन ने बी की स्पीड को कम कर दिया और वहां तक ले आया। ऐसा होता भी है, यू माइट हैव सीन सम बॉडीज विच रोल ऑन द ग्राउंड, थोड़ी देर स्लाइड करते हैं, फिर जैसे बिलियर्ड्स में स्लाइड होती है फिर रोलिंग शुरू होती है उसकी। थोड़ी देर के लिए स्लाइड करते हैं और फिर रोलिंग शुरू होती है। नोट करा कभी ये बिलियर्ड्स में? बिलियर्ड्स में यस, कब कभी, कब unless you only the professional players get do it, they know where to hit the ball to be able to do that, to make it slide, so they know the points। इसी कैलकुलेशन के अंदर होता है वो छुपा हुआ। बिलियर्ड्स के अंदर तो वैसे हैं वो क्या स्ट्राइकर जो मारते डंडे से हाँ हाँ हाँ, तो उसमें देखे, फर्स्ट दे डू द बॉल स्लाइड्स एंड देन आफ्टर अ सर्टन टाइम इतना फ्रिक्शन लग जाता है उसके ऊपर कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी बहुत हाई थी, है ना, इतनी हाई हो जाती है कि v बिकम्स ग्रेटर देन ओमेगा r, तो स्लाइडिंग शुरू हो जाती है इसकी। आगे तो जा रहा होता है लेकिन v बिकम्स ग्रेटर, तो ये पॉइंट रेस्ट पे नहीं रहता। और ठीक है रेस्ट पे ना रहने की वजह से इफ इट इज गोइंग टू फ्रिक्शन इज काइनेटिक, फिर फ्रिक्शन लगता है थोड़ी देर के बाद, यहाँ पे क्या होता है v बिकम्स इक्वल टू ओमेगा r। इस पैच में उसकी स्पीड कम होती जाती है, लीनियर ट्रांसलेशन वाली, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक लेवल पे आती है, इट बिकम्स इक्वल, और यहाँ रोल करना शुरू कर देता है, ये पॉइंट रेस्ट पे आ जाता है। उससे पहले ये रेस्ट पे नहीं होता। तो कई बॉडीज ऐसे होती है, मैंने बोला था ना कि वी हैव नॉट डिस्कस्ड रोलिंग विद स्लाइडिंग, हमने तो
प्योर रोलिंग पढ़ी है ना सिर्फ, बट इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दिया, आफ्टर द परफेक्ट रोलिंग बिगिंस एंड बिफोर द परफेक्ट रोलिंग. तो ही सेइंग दैट दिस इज अ क्वेश्चन इन विच देयर इज अ impure rolling involved before the rolling starts. ठीक है, तो इसको रोटेट करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव कैलकुलेटेड दिस, राइट? ठीक है ना? हम्म, तो यू से ओके, तो ये काइनेटिक है बेसिकली, राइट? बिकॉज इट इज गोइंग टू स्लाइड एज पर हिम, और थोड़ी देर के बाद it will show pure rolling when this point will come to a rest. This point otherwise is behaving with relative motion with respect to the ground. But sense ठीक of है। direction में change हुआ, if you notice. वो बोल रहा है before pure rolling begins, what is the direction? We have not discussed this कि what happens in the case of sliding का जो diagram है वो क्या होता है. We have not discussed, but we know this, right? ये तो हमें पता ही है. ठीक है। और जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर परफेक्ट रोलिंग बिगिंस, राइट? डायरेक्शन नहीं पूछी, डायरेक्शन तो यही है जो है फ्रिक्शन की, क्योंकि इस पॉइंट की स्पीड आपने कम करके प्योर रोलिंग वाले पे लेके आनी है, कम करते हुए. फ्रिक्शन का क्या काम है? स्पीड कम करना ना. हाँ जी। आपका v इज कमिंग ग्रेटर देन ओमेगा आर. जिस स्पीड से आप रोल कर रहे हो या रोटेट कर रहे हो वो ओमेगा आर है, लेकिन जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी आपके पास है ये है 5 मीटर पर सेकेंड. v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और ये है 10 मीटर पर सेकेंड. तो नेट इसकी क्या वेलोसिटी हुई? 5 हुई ना राइट साइड पे. हाँ दैट मीन्स इट हैज रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन. वो काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी स्पीड कम करते 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 10 से, हो सकता है इसकी जो रोलिंग वाली स्पीड है 5, उस तक ले आएगा थोड़ी देर में, 10 to 5, डिपेंडिंग ऑन कितना फ्रिक्शन है. और ये 5, दोनों 5 हो जाएंगे, ये भी 5 हो जाएगा और ट्रांसलेटरी वाली भी 5 हो जाएगा. दोनों 5 हो जाने से इट विल स्टार्ट डूइंग प्योर रोलिंग. तो ठीक। पहले क्वेश्चन के अंदर तो ऑब्वियसली, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. माय आंसर इज, सी काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0, यस। is equal to 0. And my second answer to this problem is, जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है it has to be greater than mu, मतलब 1/3 of tan theta हाँ, into the थ्री normal थ्री reaction. म्यू एस, 3 म्यू एस। हाँ, या mu s into n कर लो, या mu s is equal to, कम से कम तो इतना होना चाहिए ना. So the minimum force of friction static I have is this. मिनिमम तो इतनी है, इससे ग्रेटर देन इक्वल है तो बहुत अच्छा है. ये ओके। mu s है ना. तो आई एम गोइंग टू हाँ आंसर दिस इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर. भाई काइनेटिक फ्रिक्शन तो गायब है, पहले था काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां से लेके यहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन था, अब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है. ये एरिया प्योर रोलिंग का, यहाँ पे स्लाइडिंग एंड रोलिंग है. ओके। नेक्स्ट, this is somewhat similar to what we have done, derivation, but read it carefully. अभी जो वर्ल्ड वाइड हालत है ना ग्लोबल, there is a very good chance that Indian students are not able to go abroad to study. So keep a vigil on that. जो डायनामिक्स अभी वर्ल्ड के चल रहे हैं ऐसे ही हैं. एजुकेशन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया. कैसे? देयर इज अ डिप्लोमेटिक वॉर ना विद कनाडा. वो तो काफी इकोनॉमी भी अनस्टेबल है काफी कंट्रीज हाँ की, तो तो मतलब कभी भी डूब सकती है। हाँ, तो फिर वाई विल एनीबडी गो एंड स्टडी देयर? बैंकरप्ट होगी कंट्री जी पूरी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा जिसके लिए लोग जाते हैं कि जॉब्स होंगी. जब इकोनॉमी नहीं तो जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो क्या करने जाओगे? हमें बर्फ बर्फ साफ करने. सो प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर एंट्रेंस. मतलब अब सीरियस हो जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे. ऐसा ना हो कि यू आर बैंकिंग ऑन सम फॉरेन. यूएस इज स्टिल ओपन बट यू नेवर नो.
अमेरिका खुला हुआ है, लेकिन अमेरिका में इफ यू वांट टू गो एंड डू इंजीनियरिंग ऑन अ पेड बेसिस, it will cost you 3 crore rupees. Just be ready with that money also. You need 3 CR as one time payment. And then the study is very hard there. पढ़ाई बहुत कराते हैं वो प्रॉपर तरीके से अच्छी यूनिवर्सिटी में. That stamina should also develop. So all these concepts will help you. ये तो बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं पैसे देके, and then they are not able to cope up with the pressure of education, क्योंकि वो बेसिकली कमज़ोर बच्चे ही होते हैं जो यहाँ कोप अप नहीं कर पाए, वहाँ भी नहीं कर पाते. वहाँ ट्यूशन और ये पास करा दो जी, पैसे दे लगे, कुछ नहीं होने वाला वहाँ. तो डेवलप योर मास्टर्स मसल्स. करने के लिए अच्छा है वो. क्या करने के लिए? मास्टर्स. हाँ, बेस्ट है, जहाँ आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए. अब मास्टर्स करके थोड़ा सा वो भी हो जाता है ना. नहीं, करनी मैंडेटरी है. मैंने नहीं करी ना, तो आई रिग्रेट इट. करनी चाहिए. एमटेक. हाँ, नहीं करी ना मैंने. आपने मेरी एमबीए कितनी करी से, क्या? मैंने एमबीए भी नहीं करी. मैंने ऐसी पार्ट टाइम कुछ कर लिया था, मैंने कुछ नहीं करा. वो सबसे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई मेरी मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल में, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, और 4-5 और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी हो गई, एमटेक में भी हो गई. गेट का पेपर भी दिया था मैंने, कहीं ज्वाइन ही नहीं करा, क्योंकि मुझे वो आगे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था आगे. तो बस होगी, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, नुकसान हो गया, फर्क पड़ता है उससे. सो यू हैव टू डू मास्टर्स इन मॉडर्न वर्ल्ड. जी. पीएचडी. यस, नॉट पीएचडी. एक बार पीएचडी करोगे ना तो उसका थोड़ा वो भी रहता है. एक पैकेजेस भी मैं घिस बढ़िया. गया हूँ भाई, मुझे, मैं तो अब क्या करूँगा पैकेज वैकेज का, लेकिन हाँ फर्क पड़ेगा. एकेडमिक वगैरह प्रोफेसर लगना है तो रिसर्च में जाने करो. करो जी, सॉलिड सिलेंडर. इनफ ऑफ रिलैक्सेशन नाउ. सॉलिड सिलेंडर है, परफेक्ट रोलिंग है, 30 डिग्री भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी दे दिया. व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सिलेंडर? म्यू एम जी कॉस थीटा. हाँ जी. बहुत बड़ी बात है. व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग? म्यू एम जी साइन थीटा. नहीं नहीं, बट ये तो इंक्लाइंड है ना. हाँ, तो एमजी cos थीटा नहीं होना चाहिए, म्यू एमजी cos थीटा. क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. म्यू एम जी कॉस थीटा. हाँ हाँ, आप म्यू एमजी बोल रहे थे. म्यू एम जी कॉस थीटा. अच्छा अच्छा, मुझे म्यू आप लगा कि आप वो बोल हाँ, रहे थे, म्यू एमजी. हाँ पहले निकल गया था, ठीक है. वर्क डन बाय द, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, दैट मीन्स यू लू डिसिपेटिव वर्क. नीचे आते आते आपकी जो है लॉस हो जाएगी, होगी. व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग? डिस्टेंस भी आपको मालूम है, 15 सेंटीमीटर. नहीं, वो नहीं दिया, डिस्टेंस नहीं दिया ना? हाँ. दिया है? नहीं, कहीं लिखा तो नहीं है. नहीं, निकालना पड़ेगा ओके. लगता है. बट काइनेटिक फ्रिक्शन तो मतलब मिसिंग है. स्टैटिक फ्रिक्शन है यार. आई एम जस्ट थिंकिंग कि the work done zero, no, this at rest. काइनेटिक फ्रिक्शन में वर्क डन होता है, स्टैटिक में नहीं होता कोई वर्क डन. Yes. नो लॉस. तो वर्क डन इज जीरो. जीरो. जीरो, यस. If the inclination of theta of the plane is increased, at what value does the cylinder begin to skid and not roll perfectly? थ्री Okay. थ्री वो म्यू की जो वैल्यू थी. अच्छा, वो 3 म्यू एस थी. जी. सो तो मिनिमम कितना म्यू एस चाहिए आपको? हम्म, म्यू एस चाहिए 1/3 ऑफ tan थीटा, राइट? 1/3 ऑफ tan थीटा. तो पहले तो म्यू एस, वो 1/3 ऑफ tan थीटा जो है, वो कौन सा tan होगा जहाँ पे म्यू एस विल बिकम इक्वल टू 0.25? फाइंड दैट. 0.25 दिया ना? So हाँ जी. 0.25 is equal to 1/3 of tan theta. So tan theta is equal to 3 into 0.25, ठीक. 0.75. So थीटा कितना आ गया उससे? 0.75 का थीटा कितना है? 1 तो नहीं, 1 पे तो 1 is 45 डिग्रीज. कितना आ जाएगा थीटा? tan थीटा कितना हो जाएगा?
आपने इंक्लिनेशन बढ़ा दी ना बहुत सारी. हाँ So जी. tan theta is equal to 3 में, हाँ tan theta, तो theta is 36 degree 52 seconds. 36 degree 52. ओके. If you take the angle above this, you are going to see sliding. Theta has to be less than 36 degree, that 36 52, to keep it in rolling motion. If it goes beyond it, it will do that. ठीक है. You can feel the strength of this topic, right? हाँ जी. The feeling it gives you फायर. is हाँ, मतलब अब ना कराओ किसी को, ऊपर ऊपर से करा दो तो जीरो है भाई, पेपर में जीरो. मतलब सेकंड टर्म में और नंबर कम हो गए. यू विल सी दिस इन योर स्कूल. शून्य, इसी चैप्टर की वजह से पीपल विल लूज इंटरेस्ट, जो भी फिजिक्स में बचा हुआ इंटरेस्ट है. मेरे साथ भी यही हुआ था. नो, आई वॉज नो डिफरेंट. पढ़ाएंगे कुछ नहीं, पूछेंगे दुनिया भर के क्वेश्चन. जो मैंने क्वेश्चन में क्या होता है वो भी पूछ ले. कौन से? मतलब थोड़े पक्का ही ना जेई में से क्वेश्चन पूछेंगे. आई डोंट थिंक सो. तुम्हारे स्कूल का पेपर देख के जेई मेंस जिस सबका जीरो आएगा. सर जो क्या कहते हैं, जो मेडिकल सेक्शन है ना, हम्म. वहां पर 10 बच्चे फेल हो गए थे फिजिक्स में. अच्छा. ओके. क्या? कितने होंगे टोटल? 25 होंगे. हाँ. लेता ही नहीं आजकल बायो कोई. 8 साल डॉक्टरी के लिए कौन लगाएगा? मुश्किल है. हाँ जी, ABCD आंसर्स. ए बी. एक मिनट सर. रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. इसके बाद में भेज रहा हूँ तुम्हें असाइनमेंट, जिसमें सिर्फ 75 क्वेश्चंस होंगे. स्ट्रेट फर्स्ट. फॉरवर्ड स्कूल लेवल, CBSE. उसमें से बहुत MCQ होंगे, रीजनिंग असर्शन होगा, और 2 3 5 मार्कर्स होंगे. तो पहली वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स है. यस. गुड. ये बेसिक करने से मोर क्लैरिटी विल इमर्ज. करेक्ट. सेकंड वाली स्टेटमेंट शायद ट्रू है. ट्रू है. एंड इंसिडेंट इज. लीनियर एक्सेल रोलिंग एक्सेलरेशन. ध्यान से पढ़ लो. एक्सेलरेशन, अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है ना. हाँ. इट हैज अ लीनियर एक्सेलरेशन, तो निकाली थी हमने. वो लीनियर एक्सेलरेशन फिर किसकी थी? वो आई गेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नहीं थी. यार, अल्फा आर निकाला था ए को. नहीं, पूरी बॉडी की होती है लीनियर एक्सेलरेशन. अच्छा. कैन नॉट बी जीरो. इफ यू हैव अल्फा, हाउ कैन यू हैव ए टू बी जीरो मैन? अल्फा तो है ना उसमें. कुछ. रोलिंग मोशन में अल्फा है, देयरफॉर यू हैव ठीक. ए इज इक्वल टू आर अल्फा. नेक्स्ट. ट्रू. ट्रू. It is zero because there is no kinetic friction. इसका आंसर, it's only static friction, and no work is done when static पॉइंट ऑफ कांटेक्ट friction. रिस्क पे. Yes. Frictionless will undergo slipping. Yes. How can it roll? Because there is no source of torque. यस. स्लिप ही तो करेगा, सीधा चला जाएगा नीचे. टेंजेंशियली कुछ मिला नहीं ना एंड में. पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, इतना बहुत है. हाँ, अब थोड़ा समझ आ रहा है. आता है यार, टेक्स टाइम, बट सेल्फ स्टडी से अगर इफ यू गो विद दिस प्रिपरेशन, यू आर बाउंड टू स्कोर 40%. इफ यू विल पुट योर एफर्ट, दिस नंबर विल गो अप. मैं पहले ही सबको बोल रहा हूँ ये. सिर्फ डोंट डिपेंड ऑन दिस. इससे एग्जॉस्टिव और डिटेल पता नहीं है मुझे भी, बट एग्जाम लाइक प्रिपरेशन नीड्स सेल्फ स्टडी. कोई चॉइस ही नहीं है अपने पास.
एग्जाम की रेजर शार्प तैयारी अलग तरीके से करी जाती है। असाइनमेंट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट दो, तो आते नंबर पता चल जाता है कौन सा पॉइंट वीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। स्कूल का असाइनमेंट मिला? एनी मोर असाइनमेंट्स फ्रॉम स्कूल नो नो। ऑन दिस टॉपिक? नो। नहीं, अभी तो नहीं मिली। गॉट इट। मिलनी चाहिए यार, अब तो हाई टाइम है। सर पे तो एनोटेक के चक्कर में तो भाई वो भी नहीं अच्छा, हुआ, मैं हाँ तो हाँ, ये बात भी है। वो भी तो एक बहुत बड़ा पंगा बहुत है। बकवास चीज थी वो। They're they're earning money and they're wasting time also, which is so good. What मतलब, वो गुड। और क्या मतलब, no effort and return, look at the returns, and you have no choice but to tolerate कि भैया हम तो जाएंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने, आता कुछ नहीं है, सिखाएंगे कुछ नहीं, और जाएंगे हम, वहीं जाएंगे हम तो, जाओ भाई। मेरी मर्जी तो नहीं थी जाना। नेशनल ओपन स्कूल जो है NIOS, वो ज्वाइन करो, घर बैठो, एक इंस्ट्रूमेंट सीखो, एक्सरसाइज करो, बैडमिंटन खेलो, और रोज 8 घंटे पढ़ो, और मॉक टेस्ट दे के सो जाओ। क्या स्कूल में सुबह 6 बजे उठ के धक्के खाने के लिए चले गए? जिससे बात करो सर, एक वर्ड नहीं समझ में आया। प्लान क्या, अगर मैं डमी स्कूल में होता एक एक वर्ड तो नहीं समझ मैं में। 9 बजे उठता, 9 बजे सुबह को। हाँ, सो के अपना पूरा, उसके बाद हाँ, शेड्यूल बना के अपना 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़े, उसके बाद 2-3 घंटे भाग गए खेलने तो कूदने एक्सरसाइज करने। 9 से लाइक 10 तक मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुआ। हाँ। फिर 10 से क्या कहते हैं, वन यस। 1 PM तक पढ़ा। यस। फिर मैंने कुछ, अगर मैं जैसे मेरे को इंस्ट्रूमेंट सीखने का था तो वो सीख लिया 1 घंटा। हाँ, एनीथिंग यू कैन परस्यू अ हॉबी एंड पुट 8 to 10 hours ऑफ योर ओन एफर्ट। 2-3 घंटे क्लास पढ़ ली, और जो भी पढ़नी, अंग्रेजी ये वो, उसके बाद अपना बैठ गए पढ़ने, एम्पल टाइम इज विद यू। दोज 8 hours सिटिंग इन द क्लास, व्हाट डू यू लर्न? नथिंग। एक सेकेंड। ग्रेविटेशन अभी आपको आता ही नहीं है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। गुरुग्राम में फ्लैट है आपका? हम्म, दो हैं, टोटल 3 है। रिच। ठीक है यार, मिडिल क्लास है, कोई रिच विच नहीं है, बड़े ऑर्डिनरी रिच। से हैं। दिल्ली में 2 हैं। एनीवे, फाइव। जी, एक फरीदाबाद में। एम्पायर। टोटल 2 चपाती का ही है, और कुछ नहीं करा पूरे दिन में। मैंने एक कोल्ड कॉफी पी है और एक 2 चपाती खाई है, कुछ खा भी नहीं सकते, और ये अपनी हॉबी जो है उसको पूरा कर रहे हैं, जो अपना सपना था कि भैया ये करना है। और इसका सबसे बड़ा रिग्रेट है कि ये नहीं करा जब सही टाइम था। इसका मास्टर था मैं, किस चीज का? मतलब मुझे पसंद था ना ये पढ़ाना वढ़ाना, तो मैंने करा ही नहीं था। मैं तो कह रहा था कि आप सर इंजीनियरिंग के बजाय ना किसी चीज में PhD कर लेते हैं। यस, दैट वाज माय गोल, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में, अरे वाह। मैं सेंट स्टीफंस गया था कुछ दिन के लिए पढ़ने। सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो इंटरव्यू में सिलेक्शन होती थी, और दैट वाज माय ड्रीम, बड़ा अनफॉर्चुनेटली ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करें, क्योंकि भाई धक्के खाओगे, नौकरी नहीं मेरा भी बड़ा मिलेगी। मन कर रहा था कि मैं भी प्रोफेसर बनूं। मस्त काम है यार वो, इंडिया में नहीं, अमेरिका। अमेरिका में भी ठीक है। इंडिया में भी कर सकते हैं, कोई और। हाँ जी, लास्ट IoT में क्वेश्चन ऑफ द डे, करो, भागो, खाना खाओ, सो जाओ। भी भागे उड़ मन इस चैप्टर से। रिंग क्या भाग क्वेश्चन है? भाग नहीं सकते अच्छा जी, मत भागो। चैप्टर से।
ये लो। मुझे बस थर्मोडायनेमिक्स करनी है, केमिस्ट्री का सिलेबस निपट जाएगा मेरे यूटी में। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। देख लेना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना होता है, उसमें कुछ नहीं होता। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन ये? मैं इसको आपको करके भेज दूं क्या? हाँ ठीक है, वर्क्स फॉर मी। मैं तब तक असाइनमेंट बना के भेज रहा हूँ, प्लीज डू इट। मिल जाएगी आपको, टाइम पे मिलेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। बाय। अब ये प्राइवेट ऑफिस है, ठीक है। बनेगा मतलब एक दिन तो। कहाँ पे? अपने सरकारी दफ्तर कहते थे ना। ये भी सपना ही रह जाएगा मेरा। भाई चलो ठीक है, बाकियों से बुद्धिमान भी हो और सही डायरेक्शन में हो। वो अपना लेबर जो है अभी नजर नहीं आ रहा, उसके दो फैक्टर हैं। कोई मतलब बहुत ज्यादा कंफर्ट मिला हुआ है लाइफ में, तो डिफिकल्टी फेस करने की आदत छूट गई है पैसा होने की वजह से। दूसरा कि स्कूल में 8 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, करना भी चाहोगे तो करोगे कब? यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, यू नीड सेपरेट स्लॉट फॉर दैट, वो है ही नहीं आपके पास। टाइम की किल्लत है, इंटेंशन की भी किल्लत है। तो ये सिचुएशन है, बट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा यार। चलो।